السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل. میری امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. آج کا ٹاپک کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے. آج کا ٹاپک بہت ہی ڈیپ، بڑا اور گہرا ہے، جس کے بارے میں بہت لوگوں کے سوالات آتے ہیں. کیونکہ اب جیسے ہی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس زیادہ آتی جا رہی ہے، تو ورڈ جو ہیلنگ کا ورڈ ہے نا، یہ ہم بہت سنتے آ رہے ہیں. تو آج میں نے اپنی کوشش ہوگی کہ میں اس ویڈیو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکوں کہ ہیلنگ کیا ہے اور اس کے سٹیپس میں سے ہم کیسے گزر سکتے ہیں. اب یہ یاد رکھیے کہ اس میں ہر چیز کور نہیں ہو پائے گی. یہ چھوٹی ویڈیو ہے اور ہیلنگ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہیلنگ سے مراد کیا ہے؟ ہیلنگ سے اگر میں لٹرل ورڈ اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو مطلب ہے شفا. دیکھیے، جس طریقے سے ہمیں فزیکل چوٹ لگتی ہے، زخم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم سب کی زندگی میں کچھ ایموشنل زخم بھی ہوتے ہیں. یعنی ہمارے جذبات اور ہمارے جو اندر ہمارا سول ہے، اس میں بھی کچھ ایسے زخم بن جاتے ہیں جب ہم کسی ٹرومیٹک یا پینفل چیزوں سے گزرتے ہیں. کوئی بھی دردناک یا کوئی حادثات جو ہماری زندگی میں گزرتے ہیں، ان کے رزلٹ میں ہمارے اندر کچھ اندر کے زخم بھی بن جاتے ہیں. اندر سے مراد ہے ہمارے ایموشنز کے، یا اگر ہم تھوڑی پوئٹک بات کریں تو دل کے زخم بن جاتے ہیں، یا ہمارے جو اندر ہماری مینٹل ہیلتھ کے زخم بن جاتے ہیں. یہ وہ زخم نہیں ہیں جو چوٹ نظر آتی ہے، اور اسی لیے مینٹل ہیلتھ کا سٹگما اتنا سارا ہے، کیونکہ وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کے زخم ہے. تو اس کے لیے ہیلنگ ہونا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی کا بازو ٹوٹتا ہے تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہیلپ لینا آسان لگتا ہے. ہم جاتے ہیں، فریکچر ہوتا ہے، یا تو سرجری ہوتی ہے، ہڈی کو سیدھا کر کے پھر اس پہ پلاسٹر لگا دیا جاتا ہے. اگر ہم یہاں پہ گرے اور اسکریچ ہوا اور سٹچز کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر کئی دفعہ اس کو سٹچ کرتے ہیں، پھر اوپر پٹی ہوتی ہے، پھر کچھ اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں اور کچھ اس کو صاف رکھتے ہیں، اس کو کلین رکھتے ہیں. یہ جو فزیکل جتنے زخم ہیں، ان کو تو صحیح کرنے کا اور ان کی شفا کا ہمیں طریقہ کار آتا ہے، اور ہم اس میں بلیو بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا ایمان بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے یہ دوا کھانی ہے، اس طریقے سے پٹی کو چینج کرنا ہے، اور اس کا شفا اور مرہم پٹی ایسے ہوگی. لیکن جو ہمارے اندر کے جو دکھ ہیں اور جو زخم بن جاتے ہیں، ان کی ہیلنگ کیسے ہوتی ہے؟ اس میں ہم بلیو کیوں نہیں کرتے کہ وہ ایکچوئل ہیلنگ پاسبل ہے؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں ہمیں سکھایا نہیں جاتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اندر کا جو زخم ہے وہ زخم ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہمارے ایموشنز کے جو زخم بن جاتے ہیں، جو ہی اندر ہمارے ایموشنل ٹراماز ہوتے ہیں، ان کی ہیلنگ پاسبل ہے. لیکن سب سے پہلے اس بات کو ریکگنائز کرنا، اس بات کی نشاندہی کرنا، اس بات کو واضح کرنا کہ وہ زخم موجود ہے. اگر ہم یہی پریٹینڈ کرتے رہیں گے کہ زخم ہے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں، میری لائف میں تو کوئی ٹرامیٹک انسیڈنٹس ہے ہی نہیں. کیونکہ ٹراما میں پہلے بات کر چکی ہوں، صرف بڑے ٹراماز نہیں ہوتے. کیپٹل ٹی ٹراما سے مراد ہوتا ہے بڑے ٹراماز، جس میں آتا ہے خدا نہ خواستہ فزیکل ابیوز، خدا نہ خواستہ سیکشول ابیوز، خدا نہ خواستہ اور کسی پیارے کی لاسز ہونا، کہ اور کوئی ایسا حادثہ ہونا جس میں لگے یا ہماری یا کسی پیارے کی جان جا سکتی ہے. یہ کیپٹل ٹی ٹراماز ہیں. اسمالر ٹی ٹراماز بھی تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اسمالر ٹی کے اندر آ جاتا ہے کہ کسی نے آپ کو اگر بلی کیا، تو بلنگ جو ہے وہ تو بہت کامن ہے، اور ہماری سوسائٹی میں تو ویسے ہی ہنسی مذاق کا نام دے کے بلی کیا جاتا ہے، لوگوں کو شیم کیا جاتا ہے. بلنگ اٹ کین بی این ایموشنل ٹراما. بہت سے لوگ کہ وہ اس ٹراما کو لے کے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز ٹرامیٹک ہو سکتی ہے کسی کے لیے. اور بھی بہت طریقے ہیں جس سے ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے زخم بن سکتے ہیں. ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ ہونا، بریک اپس ہونا، ڈیورس ہونا، اور کسی کا لاس ہونا، ماں باپ کی بیماری، ماں باپ کا کوئی ڈرگ یوز، ماں باپ کا جیل جانا، گھر میں ہر وقت فساد ہونا، گھر میں فزیکل لڑائیاں ہونا. اور یہ سب کس پہ آتے ہیں؟ یہ ٹراماز بن سکتے ہیں. کوئی ٹیچر نے آپ کے ساتھ بہت برا بہیو کرا، کسی بچوں نے آپ کا بہت زیادہ مذاق اڑایا، بلنگ میں آ جاتا ہے. یہ سب ٹراماز بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے، اور یہ وونز بن سکتے ہیں. تو ہیلنگ پاسبل ہے. سب سے پہلے تو میں نے آپ سے یہ شیئر کرنا ہے. پہلا جو بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، اس جو دکھ جو زخم ہے اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے، اس کو ہمیں نام دینا ہے.
एक्नॉलेज करना है कि ये वूंड, ये दुख, ये ज़ख़म है मेरे अंदर। जब तक मैं ये नहीं करूँगी कि ये चोट यहाँ मुझे लगी है, चोट तो लगी नहीं, तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूँगी, मैं उसकी मरहम पट्टी कैसे करूँगी? नहीं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ हमें उस दुख, उस ज़ख़म को नाम देना, उसको रिकग्नाइज़ करना है कि ये मौजूद है, लेकिन मैंने प्रिटेंड किया मौजूद नहीं है, वो मेरे अंदर ज़रूर रहेगा। और मैं छोटे बच्चों को ये वजाहत करती हूँ, एक बलून को अगर मैं हवा भरती जाऊँगी तो क्या होगा, वो फट जाएगा। इसी तरीके से हमारे अंदर ये दुख और ये ज़ख़म, अगर हम इमोशनल वूंड्स को हीलिंग की तरफ नहीं लेके जाते तो वो हमारी बहुत और तरीके से बुरी शक्ल में नज़र आते हैं। किस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, सुसाइड, एंगर प्रॉब्लम्स, गुस्से का आना बहुत ज़्यादा, डांट डपट करना, गाली गलौज करना, और फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, स्ट्रोक, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक। इन सब का स्ट्रेस और इमोशनल वूंड्स के साथ ताल्लुक़ है। बात यही है कि हमने इन वूंड्स को नाम देना है, इनकी निशानदही करनी है। हम कहते हैं ना, निशानदही। जब तक निशानदही नहीं करेंगे, रिकग्निशन नहीं करेंगे, तो हम उसकी मरहम पट्टी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने साथ वक्त गुजारना है, कि रिफ़्लेक्ट करना है और उसको नाम देना है, उसको एक शक्ल देनी है कि ये क्या था। अब ये कैसे करना है, इसके तरीके हैं। मुझे पता है कि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो काफ़ी क्यूरियस हैं आप सब, और आप इंटरेस्टेड, आप इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं। इसकी कोई एक तरीका नहीं है अवेयरनेस डेवलप करने का कि मेरे अंदर कौन से इमोशनल वूंड्स मौजूद हैं। उसके लिए थोड़ा सा अपने साथ टाइम गुजारना है। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई है जर्नलिंग, पेपर लेके मेरी क्या फीलिंग्स है उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। किसी जगह से स्टार्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। देखिए मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जो मुझे इमोशनल वूंड लेकर मेरे साथ चल रही हैं। जर्नलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर लिखना नहीं है, वॉइस नोट्स, अपने आप को वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, या फिर जो महसूस कर रहे हैं उसको पेंट करना शुरू कर दें, और थोड़ा सा टाइम निकालें। मैं कहूँगी दिन के डेली के 10 मिनट अगर निकालना शुरू कर देते हैं, जर्नलिंग करना शुरू कर दें कि मेरे अंदर कौन से दुख मौजूद हैं। पहले इनको हम नाम और शक्ल देंगे। जब हम इस तरीके से उनको लिख लेते हैं या वॉइस नोट की शक्ल से इजहार कर पाते हैं, तो फिर हम बेसिकली सफाई और क्लैरिटी आती है। क्योंकि ये जो वूंड्स होते हैं, ये हमारे अंदर एक बोझ होता है, इनका एक वज़न होता है, इनका एक वेट होता है जो हमारे जहन पे होता है। क्योंकि हम इनको कभी जब तक इनको नाम नहीं देंगे तो वो एक अननोन, एक किस्म का एक बोझ होता है। लेकिन उस चीज़ को जब हम क्लैरिटी और सफाई के साथ बयान कर पाते हैं, या वॉइस नोट में या लिखाई में, या मैं कनेक्शन में बात करूँगी, या फिर थेरेपिस्ट के साथ हम उस चीज़ को शेयर कर पाते हैं, या कोई और ट्रस्टिंग इंसान के साथ उसका दिल का उस बात का इजहार कर पाते हैं, तो उसमें सफाई आती है, क्लैरिटी आती है। ये स्टेप ऐसा ही है कि जब चोट लगी है, उसमें जहाँ गिरे थे वहाँ मट्टी थी, सबसे पहले मट्टी को हमने दूर किया, साफ़ किया, थोड़ा एंटीसेप्टिक लगाया। ये वो स्टेप है। हमने वूंड को पहचाना, रिकग्नाइज़ किया, उसकी हमने निशानदेही की, और फिर उसको क्लैरिटी हमने बयान की कि हाँ, ये जो वूंड है मेरा, ये कहाँ से आ रहा है, कब शुरू हुआ था, क्या उम्र थी मेरी जब ये दर्द शुरू हुआ था, और आज तक मैंने इसके लिए क्या किया है। कौन सी चीज़ें जो आज मेरे इस वूंड को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। ये हो गया इस वूंड को क्लैरिटी देना। ये काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं स्टार्ट, और हीलिंग थेरेपिस्ट के साथ भी होती है तो ऑब्वियसली और बेहतर हो सकती है। लेकिन सवाल आता है ना, हीलिंग है क्या? तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, उस वूंड की रिकग्निशन करना। नंबर 2, नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं, कोई दुख होते हैं हमारे और ज़ख़म बन जाते हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सर्वाइवल मोड में रहना शुरू कर देता है। यानी हर वक्त एक अलर्ट पे रहता है हमारा जहन। हर वक्त वो अपने आप को प्रोटेक्ट और अपने आप को सेव करने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है। हर वक्त लगता है कि रिलैक्स कर ही नहीं सकते। हर वक्त ऐसे लगता है कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। बस यही एक फ़िक्र लगी रहती है। फ़िक्र को हम छोड़ ही नहीं पाते। ये रिस्पॉन्स हमारा नर्वस सिस्टम करता है जब वो ट्रॉमा से गुजरता है, राइट?
क्योंकि अब हमारे नर्वस सिस्टम ने, हमारे जहन ने कहा कि अब तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, ये दुख, ये ट्रॉमा तुम्हारे साथ हुआ, अब मैं ओवरड्राइव में चला जाऊंगा, अब मेरी सोचें तेज़ तेज़ आएंगी, मैं हर जगह जाके ना अनसेफ फील करूंगा और मुझे हर चीज़ गौर गौर से देखनी होगी कि कहीं दोबारा से कोई मुझे आके चोट ना लगाए, दोबारा से कोई आके मुझे अटैक ना करे. तो नर्वस सिस्टम इज़ फंक्शनिंग एट वेरी हाई सर्वाइवल मोड. फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्सेस के अंदर वो स्टक है. तो हीलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना, क्योंकि जब तक वो हमारा बॉडी और नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं होगा तो हम मेंटल रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट? और बॉडी और जहन कनेक्टेड है. तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे हम अपनी नर्वस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन करें. कि एकदम नहीं होता, ये एक्सरसाइजेस हैं. मेरे चैनल के ऊपर गाइडेड मेडिटेशन एक है, उस गाइडेड मेडिटेशन के अंदर सांस पे तवज्जो देना सिखाया गया है और मसल्स को हेड टू टो उस पे तवज्जो देना सिखाया गया है. ये एक बहुत ईजी तरीका है, ईजी नहीं कहूँगी, सिंपल तरीका है जो प्रैक्टिस करने से इस मेडिटेशन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. मेरे पेज पे मौजूद है. नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का तरीका. और क्या तरीके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के? दिन में ब्रेक्स लेना, लंबे गहरे सांस लेना, बॉक्स ब्रीदिंग के ऊपर मैंने बात की है पहले. फिर एक्सरसाइज और स्लो डाउन करके किसी नेचर में वॉक्स पे जाना. अपने मसल्स को प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, मैंने एंग्जाइटी की वीडियोस में बताया था, तरीके हैं नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के. लेकिन वो एक दफ़ा से नहीं होगा, वो डेली 10 to 15 मिनट्स हमें नर्वस सिस्टम की रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस का टाइम निकालना है. दैट कुड बी मैं 5 मिनट के लिए मैंने लंबे गहरे सांस लेने हैं, या मैंने 5 मिनट के लिए यूट्यूब पे कोई गाइडेड मेडिटेशन लगाई, चलें डॉक्टर हिरा के चैनल के ऊपर, और वो मैंने मेडिटेशन रोज़ करनी है, वो 20 मिनट की है. फिर मैंने 10 मिनट के लिए जो है सिर्फ मे बी रिलैक्सिंग तिलावत को सुनना है और लंबे गहरे सांस लेने हैं. अपने पट्टों पे तवज्जो दे दी. जो पट्टे मेरे खिंचे हुए हैं, मैंने हेड टू टो एक एक पट्टे को टाइट करना है, लंबा सांस लेना है और रिलैक्स करना है. हाथों को टाइट किया, रिलैक्स किया. इस तरीके से एक एक करके हम पट्टों की प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होती है, उसको हेड टू टो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स किया जाता है. तो हमें नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने की एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि ट्रॉमा में जैसे मैंने कहा हमारा ब्रेन एंक्शस होता है, तो हमें ब्रेन और बॉडी को साथ लेके चलना है और रिलैक्स करना है. नंबर 3, हम इधर आ जाते हैं, 4 और 5 पे हम बात करेंगे. नंबर 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग. जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे ट्रॉमा बेस्ड बिलीफ्स बन जाते हैं. कुछ ऐसे ईमान बन जाते हैं, कुछ ऐसी सोचें बार बार हमारे जहन में आती हैं जो हमें स्टक रखती हैं ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस के अंदर. हमारे नर्वस सिस्टम को हमेशा वहाँ रखती हैं, फाइट और फ्लाइट पे, क्योंकि हम ट्रॉमा से गुजरे थे. तो हमने एक स्टोरी बना ली अपने जहन के अंदर. वो स्टोरी इसलिए हमने बनाई हमारे जहन में ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमारी हिफाजत कर सके कि हम दोबारा से ट्रॉमा से ना गुजरें. लेकिन होता ये कि वो स्टोरी थोड़ी सी जम्बल्ड अप हो जाती है और वो सिर्फ फियर बेस्ड बन जाती है, राइट? और वो नेगेटिव चीज़ें हमारी ब्रेन में रिपीट करती रहती है. एज अ रिज़ल्ट हम अपने बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव सोच के थ्रू स्टक रहने लगते हैं. तो हीलिंग का एक बहुत बड़ा एक और पार्ट है कि हमें वो जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये मैंने यहाँ फ्रेम बनाया हुआ है, हमें पहले उनको रिकग्नाइज़ करना है, उन बिलीव्स को, और फिर हमें उसको रीफ्रेम करना है कि जो स्टोरी थी, जो हुआ मेरे साथ, उसको मैंने एक और शक्ल देनी है, उसका एक और मीनिंग देना है. ये स्टेप आसान नहीं है, ये स्टेप थेरेपिस्ट के साथ होना ज़्यादा आसान होता है कि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैंने क्या उससे मीनिंग निकाला, और वो मीनिंग निकालने के बाद कौन से बिलीव्स मैंने पकड़ लिए और मैंने उनको अपनी लाइफ का और अपने जिस्म का और अपने जहन का हिस्सा बना लिया. जबकि शायद इसी स्टोरी ये हुई मेरे साथ, लेकिन उसके बाद मुझे उन नेगेटिव बिलीव्स को होल्ड ऑन करने के बजाय उनको एक और तरीके से फ्रेम करके ये कहानी मैं अपने आप को सुना सकती हूँ, जिससे मेरा ब्रेन हर वक्त ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज में नहीं रहेगा. तो छोटे से कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूँगी, मगर ये हर किसी की सिचुएशन को मुकम्मल तौर से कवर नहीं करेंगे, बट ये एग्जांपल्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है कि किस तरह से हम उन सोचों को
थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाके बिलीव्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, रीफ्रेम कर सकते हैं अपनी स्टोरी को. फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमारा जहन बस एक बात हमें बार बार कहते रहता है कि आई एम नेवर गोइंग टू बी ओके, कि मेरे साथ अब ये हो गया, अब मैं कभी भी दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकती. ये जो सोच है ये बिल्कुल हमें स्टक रखती है. तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे रीफ्रेम करना है कि हीलिंग इज़ पॉसिबल, मेरी शिफा हो सकती है. मैं बिल्कुल वही शक्ल जो हीरा की थी वही नहीं ज़रूरी कि वो ही होगी, मे बी एक स्ट्रॉन्गर वर्जन होगा, मे बी एक हेल्दियर वर्जन होगा, मे बी एक वाइजर वर्जन होगा, लेकिन हीलिंग होगी. ये जो आई एम गोइंग टू बी ओके, आई कैन फील सेफ अगैन, बट आई हैव टू गो थ्रू हीलिंग. मुझे हीलिंग से गुजरना है. आई डोंट डिज़र्व लव, कि जो मेरे साथ हुआ अब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे कोई प्यार दे सके. ये अंदर की शेम पैदा हो जाती है. तो उसकी रीफ्रेम हमने करना है जैसे हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग का राइट है कि उसे जॉय मिले, उसे प्यार मिले, उसे खुशी मिले, उसे तहफ़्फ़ुज़ मिले. सो वो हमने अपनी तरफ भी करना है कि हर ह्यूमन बीइंग की तरह मेरा भी ये एक राइट है कि मुझे लव मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ. अंदर से होता है कि मैं बहुत गंदी हूँ और बुरी हूँ या बुरा हूँ और मैं डिज़र्व ही नहीं करता कि कोई मुझसे प्यार करे. ये ट्रॉमा ऐसी बातें आपको सिखा देते हैं और आपके बिलीव्स बन जाते हैं. हमें उन बिलीव्स को आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव करना है कि हर इंसान की तरह मैं भी लव को डिज़र्व करती हूँ. आई एम ब्रोकन, ये भी आपको ट्रॉमा कहते हैं कि मैं टूट चुका हूँ और मैं टूटा हुआ इंसान हूँ और मैं ठीक नहीं हो सकता. हमें इसको कहना है कि मैं ब्रोकन नहीं हूँ. हाँ, मेरे अंदर ज़ख्म है, वूंड्स हैं, और उन वूंड्स की आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग, शिफा हो सकती है. मैं पूरा इंसान ही टूटा हुआ नहीं हूँ. अपने आप को ये लेबल्स नहीं देने. आई एम ब्रोकन. फिर कि आई एम टू वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ इससे गुजरने के लिए. तो आपने आपको याद दिलाना है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और पहुँची हूँ. मेरे में तो वो ताकत है जो मुझे नज़र भी नहीं आ रही. तो मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ मौजूद है कि मैं हीलिंग से गुजर सकूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और भरपूर तरीके से गुजार सकूँ. सो मैं वीक नहीं हूँ. जस्ट बिकॉज मेरे साथ ये हुआ इसका ये मतलब नहीं कि मैं वीक हूँ. उसके बाद आई शुड बी ओवर दिस बाय नाउ, कि ये मेरे साथ हुआ, मैं अभी तक इसमें से निकल क्यों नहीं पाई, क्यों नहीं मैं इसमें से निकल पाई. ये जो शुड है ना, ये अपने ऊपर इतना बोझ डालता है, इतना वज़न डालता है, प्रेशर डालता है. नहीं, आपने अपने आपको बताना है कि हीलिंग का कोई टाइम लाइन और डेडलाइंस नहीं होती. आई विल हील एट माई ओन टाइम. इट्स नॉट अ रेस, राइट? इट्स नॉट अ रेस. तो अपने आप को हमने ये रिफ्रेम करना है, मैं अपने वक्त पे, अपने टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता इस ज़ख़म को भर पाऊँगी. ऐसा नहीं कि आपने कहा वो तो 6 महीने में फिट हो गई और मुझे 6 साल हो गए. इट्स ओके. अपने ऊपर और अपनी ये जो गुजरा हुआ वक्त है उसकी निदामत डालकर एक्सक्यूज़ भी अपने पे और बोझ नहीं डालना है. शुड के अंदर स्टक नहीं होना. हर एक की अपनी टाइमलाइन है, हर कोई अपने वक्त के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेके हीलिंग की तरफ जाता है. अपने ऊपर टाइमलाइन का ज़ोर ना डालें. नंबर 4, कनेक्शन. अब ये सारी बात मैंने आपसे की. हीलिंग अकेले इंसान को मैं कहूँ कि वो हीलिंग हो जाएगी तो मैं गलत कहूँगी. हीलिंग हम रिलेशनशिप्स के अंदर रहते हुए होती है, कनेक्शन के साथ होती है, कम्युनिटीज़ में हीलिंग होती है, ग्रुप्स में हीलिंग होती है. तो अगर मैं अपने दर्द को किसी के साथ बांटूंगी नहीं और शेयर नहीं करूँगी तो फिर हीलिंग मुश्किल होगी. सो कनेक्शन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ हीलिंग. येस, अपने तौर पे आपने जर्नलिंग की, अपने तौर पे आपने रिफ्लेक्शन की, अपने तौर पे आपने एक्सरसाइजेस की, अपने तौर पे आपने अपनी रीफ्रेमिंग की. लेकिन जो सोच आती है कि मैं अकेले इसको ठीक कर लूँगी, वो भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है. वो हाइपर इंडिपेंडेंस का ट्रॉमा रिस्पॉन्स है. यू डोंट हैव टू डू दिस ऑल बाय योरसेल्फ.
हीलिंग आइसोलेशन में नहीं होती, हीलिंग अकेलेपन में नहीं होती, हीलिंग कम्युनिटीज़ में होती है, ग्रुप्स में होती है, कनेक्शन से होती है। और यहाँ पे इसलिए थेरेपिस्ट का रोल आता है, ग्रुप थेरेपी का रोल आता है, कम्युनिटीज़ का रोल आता है, अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का रोल आता है। तो इसलिए कनेक्शन से भागना नहीं, कनेक्शन को हमने सीख करना है। आइडियल वुड बी कि थेरेपी के थ्रू हम हेल्दी रिलेशनशिप्स और डेवलप करना सीखें, और जैसे जैसे हम हीलिंग से गुजरते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स भी हेल्दी होना शुरू होते हैं। सो की पॉइंट मैंने बस यहाँ डिटेल पे नहीं जा रही, यही शेयर करना है कि कई दफ़ा हीलिंग हमें लगता है कि हमने अकेले करनी है, वो हमें स्टक रखती है क्योंकि शेम को छुपना होता है हमारे अंदर। हीलिंग के लिए हमें कनेक्शन भी करना है, ग्रेजुअली ट्रस्ट भी डेवलप करना है। नंबर 5, रिचुअल्स। हमें सेल्फ केयर के रिचुअल्स करने, हमें अपने साथ अच्छी शफकत से पेश आने के कुछ रिचुअल्स बनाने हैं। वो कैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी अपनी सोल को और हमारे अपनी फिज़िकल बॉडी का ख्याल रखने के छोटे छोटे रिचुअल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मैं डेली वॉक पे जाती हूँ ना, ये टाइम निकालती हूँ अपने लिए, ये मेरा एक सेल्फ केयर का रिचुअल है। जब मैं अपने लिए वक्त निकालना शुरू कर दूँगी अपनी केयर के लिए, उसमें कुछ भी हो सकता है, जो टाइम आप जैसे गुजारना चाहते हैं अपना ख्याल रखने के लिए, वो हमारी हीलिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को फॉरगिव कर रहे होते हैं, हम अपना ख्याल रख रहे होते हैं, और हम तो आपको याद कराते हैं कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी। मैं हर इंसान की तरह, मेरा भी राइट है कि मैं ख़ुद को इज़्ज़त दूँ, ख़ुद को शफ़क़त दूँ, ख़ुद को माफ़ करूँ और अपने साथ कुछ अच्छे रिचुअल्स करूँ। वो छोटी सी कप ऑफ टी हो सकता है कि मैं शाम को चाय लेके मैं लॉन में बैठ के परिंदों को देखूँगी, ये मेरा टाइम है। सारा दिन मैं अपने बच्चों और अपने हस्बैंड या अपनी बीवी या अपने काम में बिज़ी होता हूँ, 5 मिनट मैंने निकालने हैं अपने रिचुअल के लिए। सेल्फ केयर, अपनी जिस्म का ख्याल रखना, अपनी सफाई का ख्याल रखना, एक्सरसाइज का ख्याल रखना, खाना जो खा रहे हैं वो हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना नहीं खा रहे कि वज़न बढ़ता जा रहा है, नींद भी मुनासिबत से हो, ये सेल्फ केयर पे आ जाता है। क्योंकि जब हम ट्रॉमा में होते हैं तो देन हम अपनी बॉडी का ख्याल रखना बंद कर देते हैं, एक ऑलमोस्ट अपने आप के से सारा गुस्सा अपनी बॉडी पे निकाल रहे होते हैं, ना अपना ख्याल रखते हैं, ना अपने बालों का, ना अपनी शक्ल का, ना अपने जिस्म का, ना अपने वज़न का। हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है कि आहिस्ता 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 हमें अपनी जिस्म और अपने माइंड का ख्याल रखना है। जो बॉडी का ख्याल रखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंटरनल हीलिंग की तरफ भी आता है। तो अगेन मैंने जैसे कहा था, इसमें हर चीज़ हीलिंग की मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हीलिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है। जो चीज़ें आपको हील करने में हेल्प करती हैं वो हर एक पे अप्लाई नहीं करेंगी। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे आइडियाज़ लेके आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपको सूट करे। ऑब्वियसली अगर गाइडेंस होगी थेरेपिस्ट की तो वो बेस्ट होगा, लेकिन ये हीलिंग का थोड़ी सी एक समरी थी। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दिस इज़ ऑल इंक्लूसिव, लेकिन एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरी उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को उन अपने प्यारों से शेयर कर दीजिए जो आपके ख्याल में हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स पे बता दीजिए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अगली वीडियो में सुनना चाहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।